Hello everyone, how are you all? I hope all of you are fit and fine. This is Kittu and today we are going to start the fifth and the last part of this chapter, that is hydrogen. Yeah, that is hydrogen. Today we will complete this chapter. Okay. अभी तक हमने मोस्टली सारा चैप्टर कवर कर लिया है, बट हमारा एक ये ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर मेथड और एक हमारा है हैवी हाइड्रोजन, ये दो टॉपिक्स हमारे अभी रहते हैं जिनको हम आज कवर करेंगे. ओके. अभी तक हमने डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन, इंट्रोडक्शन, व्हाई हाइड्रोजन इज सो स्पेशल एंड isotopes, hydrides, resemblance of property with alkali metal and halogens, different properties, and the structure of water in liquid state, structure of ice, and physical properties of water, chemical properties of water, what is hard water, what is soft water, two types of hard water, that is two type of hardness of water, permanent and temporary. How to remove temporary hardness, that is by two methods, boiling and Clark method. And the second is permanent hardness. What is permanent hardness and how to remove permanent hardness? So we are reading this topic. We have studied the two parts, that is first is Kalgan's method, that means calcium gone, and the second is permuted or the zeolite method, that is also the ion exchange method. Now we are going to read the last, how to remove the permanent hardness, it is third part. It is organic ion exchanger, also known as synthetic ion exchanger. Okay, so why we are reading this? We have also read one more ion exchanger, but there are some drawbacks in that the hard water, in that the calcium and magnesium are removed. मतलब उसमें हार्ड वाटर में से ओनली उस मेथड से कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है हमारे वो रिलीज़ हो रहे थे, और उसी से ही हमारा मतलब वाटर इतना प्योरीफाई नहीं हो पा रहा था कि हम उसे ड्रिंकिंग में भी यूज़ कर सके. बट जो ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर मेथड है, इससे हम जैसे बहुत सारे कटायन है Na+, Ca+, Mg+, और बहुत सारे एनायंस भी हम रिमूव कर सकते हैं. और ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर करने के बाद वो डिस्टिल्ड वाटर से बहुत ज़्यादा अच्छा पानी हो जाता है, जिसे हम डीमिनरलाइज वाटर बोलते हैं, और उसे हम पीने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं. ओके, so let's see what this is the organic ion exchanger method, also known as synthetic ion exchanger. Okay, it is of two types. First, cation exchanger resins, and second, anion exchanger resins. Firstly, what is cation exchanger resins? These resins consist of giant hydrocarbons framework attached to the acidic group such as COOH और SO2OH. ये वो रेजिन्स हैं जो कंसिस्ट होते हैं, हाइड्रो जो कार्बन चेन होती है जो अटैच होती है एसिडिक ग्रुप से, COOH जो कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, और ये है SO2OH, ये है सल्फोनिक एसिड का ग्रुप, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RCOOH और RSO2OH. जो ये R है ये एक जाइंट हाइड्रोकार्बन है जो अटैच होता है एसिडिक ग्रुप से. ओके, नेक्स्ट है हमारा एनायन एक्सचेंज रेजिन्स. ये क्या है? These resins consist of giant hydrocarbon framework attached to the basic group such as OH negative. जैसे इसमें हमने एसिडिक ग्रुप अटैच कर रखे थे जाइंट हाइड्रोकार्बन से, और सेम एस इसमें हमने बेसिक ग्रुप अटैच कर रखे जैसे कि OH नेगेटिव. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ROH नेगेटिव. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो how the water of permanent hardness of water removed? See this whole process. Okay, so this is the process. So let's see how this possible. Okay, चलो देखते हैं क्या होता है. पहले क्या होता है, यहाँ से हमारा हार्ड वाटर एंटर करता है. ओके, यहाँ पे हमारा डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 एसिड होता है. जब भी यहाँ पे एंटर करता है, यहाँ पे कैटायन एक्सचेंजर रेजिन्स होते हैं. यहाँ से वेस्ट पास आउट होता है, यहाँ पर ग्रेवल होता है. जब यहाँ से हार्ड वाटर पास आउट होता है तो इसमें इनकी कैटायन की एक्सचेंजर हो जाती है, जो कि बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस यहाँ से रिलीज आउट होते हैं. बहुत ज़्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयन यहाँ से यहाँ पर जाते हैं. और यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट NaOH मीन्स OH नेगेटिव ग्रुप. यहाँ पे तो था हमारा H ग्रुप मीन्स दैट इज एसिडिक ग्रुप, और यहाँ पे हमारा है बेसिक ग्रुप. बट देखो जब H+ में OH ऐड होते हैं तो हमारा H2O यानी कि वाटर बनता है ना. जब हमारा H+OH ऐड होते हैं तब हमारा H2O बनता है. तो यही प्रोसेस यहाँ पर होती है. जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में H आयंस यहाँ पर एंटर करते हैं, और यहाँ पर हमारा यहाँ से डाइल्यूट NaOH भी इसमें पास होता है. जो OH नेगेटिव आयंस है वो H के साथ डिजोल्व हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, जो कि एनायन एक्सचेंज रेजिन से प्योरीफाइड सॉफ्ट वाटर बनाते हैं, और फिर यहाँ से सॉफ्ट वाटर पास आउट हो जाता है. ओके,
तो इनकी रिएक्शंस भी हैं कुछ, कैसे कैटायन एक्सचेंजर में होता है और कैसे एनायन एक्सचेंजर्स में होता है। फर्स्ट कैटायन एक्सचेंजर में मैंने बताया था इसको RCOH ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिएक्ट करेगा जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज CaCl2। जब ये दोनों इसमें रिएक्ट करेंगे, डिजोल्व होंगे, तो ये बनाएंगे RCO2Ca, मतलब कि जो कैल्शियम है वो एसिडिक ग्रुप से कंबाइन हो जाता है और ये एग्जॉस्टेड रेजिन बनाता है, जिससे कि H पॉजिटिव आयंस बहुत सारे अमाउंट में पास आउट होते हैं, यहाँ से क्लोरीन गैस भी रिलीज आउट होती है। और फिर एनायन एक्सचेंजर रेजिन्स में क्या होता है, इसमें है R, यहाँ पे हमने लिया है NH3OH प्लस क्लोरीन जो कि हार्ड वाटर है। ओके, ये भी जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है एग्जॉस्टेड रेजिन RNH3 प्लस Cl नेगेटिव, और ये OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है, जो कि ये दोनों ऐड होके क्या बन जाते हैं, वाटर। ओके, सो ये थी हमारी प्रोसेस की हाउ द हार्डनेस ऑफ द वाटर रिमूव्ड। ओके, सो ऐसे हमारा जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सो आगे हमारी रिएक्शंस है कि हाउ द रीजनरेशन ऑफ वाटर, मतलब जो कि ये हमारा एग्जॉस्टेड रेजिन बना है, ये दोबारा से कैसे वो बन सकता है, दोबारा से अपनी वापस वाली स्टेट में कैसे आ सकता है। ओके, सो लेट्स सी हाउ दिस रीजनरेशन ऑफ वाटर। ओके, देखते हैं हमारा रीजनरेशन ऑफ रेजिन्स कैसे होता है। मतलब हमने ये देखा कि हार्ड वाटर की जो मतलब हार्डनेस है वाटर की वो कैसे रिमूव होती है, बट जो हमने रेजिन्स का देखा वो रीजनरेशन कैसे होता है। उनकी रिएक्शंस है, देखो ये है एग्जॉस्टेड रेजिन CaOCr ट्वाइस, ये हमने अभी बनाया था ना रिएक्शन के थ्रू, जब उसमें कैटायन एक्सचेंज रेजिन में हुआ था। जब ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ जो कि एसिडिक है H पॉजिटिव Cl मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये दोबारा से रीजनरेटेड रेजिन बनाएगा जो कि है 2RCO नेगेटिव H, मतलब कि कार्बोक्सिल ग्रुप दे देगा हमें दोबारा से, और ये हमारा दोबारा से कैल्शियम आ गया, क्लोरीन गैस आ गई। ओके, और ये था एसिडिक में। और जब हम बेस में देखेंगे तो ये है RNH3Cl नेगेटिव, ये एग्जॉस्टेड है जो हमने बनाया था कुछ देर पहले, और ये है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, हमने बहुत अमाउंट में इसको हमने इसमें पास आउट किया है। तो अब ये दोबारा से रीजनरेटेड बना दिया इसने, जो हमने रिप्रेजेंट किया था ना RCOH को यहाँ पे और RNH3OH नेगेटिव को यहाँ पे, तो ये दोबारा से Na पॉजिटिव आयन दे देगा, Cl नेगेटिव आयन दे देगा। ओके, सो ये थी इसकी रीजनरेशन। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है, और ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है, और इस प्रोसेस को वो एफिशिएंट और चीप दोनों बनाती है। ओके, जब हम ये प्रोसेस कर लेंगे, जब इसकी हार्डनेस रिमूव हो जाती है, वो वाटर डीमिनरलाइज डीआयोनाइज हो जाता है, बट ये डिस्टिल्ड वाटर से काफ़ी अच्छा होता है, मतलब हम इसे पी सकते हैं। इस प्रोसेस से हमारी वाटर की हार्डनेस रिमूव हो सकती है, जो ऐसा पानी बन सकता है जो कि हम पी सकते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हैवी वाटर। यस, इट इज हैवी वाटर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा अपना पहले का कॉन्सेप्ट रिमाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इसमें यूज़ होने वाला है। आपको याद होगा मेरी सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था आइसोटोप्स। यस, आइसोटोप क्या थे, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। चैप्टर है हाइड्रोजन, तो हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पढ़े थे, जो कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। तो उनका इसमें यूज़ होगा, स्पेशली ड्यूटेरियम का। ओके, प्रोटियम क्या था, जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 था, एटॉमिक मास भी 1 था। नेक्स्ट था ड्यूटेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1, मास 2। ट्रीटियम एटॉमिक नंबर 1 बट मास 3। जो ड्यूटेरियम था हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, वो कैसे प्रिपेयर होता था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हैवी वाटर। यस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हैवी वाटर। तो हमें अभी इस हैवी वाटर में उसको ही प्रिपेयर करना है, मतलब हैवी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से उसकी ऑक्साइड बनाने, जो कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O है। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है इसमें हैवी वाटर। ओके, हैवी वाटर क्या है, ये जनरली केमिकली हम इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, जो कि होता है D2O। ये है जनरली ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो कि है D2O। इसको डिस्कवर किया था हैरोल्ड सी यूरे ने 1932 में। ओके, और ये यूज होता है मेनली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ओके, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको हम केमिकली बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सेकेंड है इसको डिस्कवर किया था हैरोल्ड सी यूरे ने 1932 में। और थर्ड है इसको हम स्पेशली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं हैवी वाटर प्रिपेयर कैसे होता है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ हैवी वाटर। तो इसके 2 मेथड हैं। पहला है प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस
और सेकंड है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पहले पढ़ते हैं ये प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। ये एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जो कि है व्हेन ऑर्डिनरी वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, जब एक ऑर्डिनरी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, जब उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, प्रोटियम इज लिबरेटेड मच मोर देन ड्यूटेरियम। प्रोटियम क्या था? फर्स्ट आइसोटोप। ड्यूटेरियम क्या था? सेकेंड आइसोटोप। जब हम ऑर्डिनरी वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो ड्यूटेरियम से ज़्यादा प्रोटियम रिलीज आउट होता है, मतलब ड्यूटेरियम कम रिलीज आउट होता है, प्रोटियम ज़्यादा रिलीज आउट होता है। इस बेसिस पे ये इलेक्ट्रोलिस मतलब प्रिपरेशन ऑफ हैवी वाटर बेस्ड है। ओके, तो इसका मेन रीज़न ये है ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ H पॉजिटिव आयन, मतलब हाइड्रोजन के स्मॉलर साइज की वजह से वो मतलब कहीं भी उसके अंदर मोबिलिटी है, वो कहीं भी मूव कर सकता है, तो इसलिए ज़्यादा ड्यूटेरियम नहीं बनती, प्रोटियम ज़्यादा बनती है। ओके, सो ये प्रोसेस कैसे होते हैं? ये एक है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इसमें क्या है, ये एक स्टील सेल है जो कि 45 सेंटीमीटर तो लॉन्ग है और 10 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है। ओके, 10 सेंटीमीटर डायामीटर और 45 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। इसको डिज़ाइन किया था 3 साइंटिस्ट ने, ब्राउन, डैगेट एंड यूरे। यूरे ने हैवी वाटर को भी डिस्कवर किया था और इसको भी डिज़ाइन करने में उसने हेल्प की थी। इसमें एक पहले तो बीच में होता है कि निकल एनोड, जिसमें बीच बीच में होल्स भी पंच हो रखे हैं। इसमें वाटर, ऑर्डिनरी वाटर, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है। ये एक सेल है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन, यहाँ पर नेगेटिव आयन, यहाँ से गैसेस होती है रिलीज आउट, और एक स्टील सेल है, इसके अंदर होती है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, और हमारे इंडिया में एक है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, जो कि इंडिया में है और हमारे यहाँ पे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में इलेक्ट्रोलिसिस होती है। ओके, 29,000 लीटर ऑफ H2 मस्ट बी इलेक्ट्रोलाइज टू गेट 1 लीटर ऑफ 99% प्योर ड्यूटेरियम ऑक्साइड। 29,000 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर की 29,000 लीटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 99% प्योर ड्यूटेरियम ऑक्साइड को मतलब पाने के लिए। ये इसका मेन पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर। ओके, that is, I repeat, 29,000 liter of H2O must be electrolysis for 1 liter to get pure 99% D2O, that is deuterium oxide. ओके, सो ये था इसका फर्स्ट मेथड कि कैसे हैवी वाटर की प्रिपरेशन होती है। अब सेकंड मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलो देखते हैं ये क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यस, ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट्स को मेज़र करते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो ऑर्डिनरी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373 केल्विन और हैवी वाटर का होता है 374.42 केल्विन। ओके, ऑर्डिनरी वाटर का 373 केल्विन, हैवी वाटर का 374.42 केल्विन। ओके, ये जो स्मॉल डिफरेंस है ना, ये बॉइलिंग क्यों होता है? ये स्मॉल डिफरेंस इसलिए होता है, boiling point forms the basis of preparation of heavy water by the fractional distillation. Here FD is fractional distillation of ordinary water. जो boiling point है ना इनका, वो जब हैवी वाटर की प्रिपरेशन होती है उसका बेसिस बन जाता है, जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है ऑर्डिनरी वाटर की। सेकंड है कि कैसे हैवी वाटर की प्रिपरेशन होती है, वो उसका बेसिस बन जाता है। जब ऑर्डिनरी वाटर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है तो उसका बेसिस बनता है। इस स्मॉल डिफरेंस की वजह से हैवी वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, बट जो फर्स्ट मेथड था प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस, वो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट था। ओके, तो ये हमारे दो मेथड से कि हैवी वाटर की प्रिपरेशन कैसे होती है। सो लेट्स नो मोर अबाउट द हैवी वाटर। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर। ओके, द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर हैवी वाटर इज कलरलेस, odorless and tasteless. It is a mobile liquid. Mobile liquid means it can move anywhere. Okay, it has mobility. Heavier than H2O. ये वाटर से हैवी वाटर है, वाटर से हैवी होता है, तभी तो इसका नाम हैवी वाटर है ना, इसलिए। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है D2O का, वो लोअर होता है H2O से। जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ज़्यादा होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड से, तो इसलिए देयरफॉर आयनिक कंपाउंड्स आर लेस सोल्यूबल इन D2O देन इन H2O। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड में इतने सोल्यूबल नहीं होते हैं, वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। ओके, तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हैवी वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके,
Hydrogen has so many chemical properties. The first property of heavy hydrogen is that is electrolysis. जो हमारा heavy hydrogen है, जब वो इलेक्ट्रोलाइज होता है तो वो कैथोड पे डाइड्यूटेरियम को बनाता है. जब उसकी रिएक्शन होती है, जब वो इलेक्ट्रोलाइज होता है तो वो डाइड्यूटेरियम को बनाता है कैथोड पर. अब इसके बहुत सारे मतलब हैवी वाटर के ऊपर एक्शन होते हैं. अल्काली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो कि हमारा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, Na2DTO बनता है. एक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड, एक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, एक्शन विद कार्बाइड, एक्शन विद फॉस्फाइड, एक्शन विद सल्फाइड, एक्शन विद आर्सेनाइड, एंड देयर आर सो मैनी केमिकल प्रॉपर्टीज. So you will read their reactions with your own, okay, and I am just telling you the properties. reactions आपको खुद करनी है, okay. और इसमें हमारा एक्सचेंज रिएक्शंस में भी हेल्प करता है. और जो लास्ट है बायोलॉजिकल, इसकी प्रॉपर्टी मतलब कि ये बायोलॉजिकल मतलब जो हैवी वाटर है ये हमारे लिए, जो हम बायोलॉजिकल में लिविंग थिंग, इसके लिए इतना यूज़फुल नहीं होता है जैसे ऑर्डिनरी वाटर होता है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस होती है ना वो बहुत स्लो होती है. तो इसलिए इसको हम अपने लिए यूज़ नहीं करते. हम अपने लिए ऑर्डिनरी वाटर को यूज़ करते हैं, हैवी वाटर को यूज़ नहीं करते हैं. जो हैवी वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो सारी वाटर की तरह ही है. जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने वाटर की पढ़ी थी केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सारी हैवी वाटर की है. बट एक ही डिफरेंस है कि जो हमारा ऑर्डिनरी वाटर है उसकी जो रिएक्शन होती है थोड़ी फास्ट होती है, बट लेकिन जो हैवी वाटर की रिएक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है. इसी वजह से हम इसे यूज़ नहीं करते, हम ऑर्डिनरी वाटर को ही यूज़ करते हैं, ओके. चलो अब हम इसके कुछ यूजेस पढ़ते हैं. हैवी वाटर के क्या यूजेस हैं. फर्स्ट यूज़ है एज अ मॉडरेटर. मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हैवी वाटर मेनली यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. तो ये मॉडरेटर का काम करता है. जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो जो न्यूट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा तेज मूवमेंट होती है तो वो हैवी वाटर को जब उसमें डाल देता है तो न्यूट्रॉन्स की मूवमेंट को थोड़ा स्लो कर देता है. तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम आता है मॉडरेटर की तरह. सेकेंड है एस आ ट्रेसर कंपाउंड. ये ट्रेसर कंपाउंड की तरह भी ऐड करता है मैकेनिज्म में, ओके. लास्ट है फोर्थ द प्रिपरेशन ऑफ डाइड्यूटेरियम. जब डाइड्यूटेरियम की प्रिपरेशन होती है उसमें तो हमने देख ही लिया है हैवी वाटर कितना यूजफुल होता है, ओके. तो ये था हमारा हैवी वाटर का कॉन्सेप्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली. आपको क्या पता चला कि हमारा ऑर्डिनरी वाटर ही अच्छा है ना हैवी वाटर से, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन है, ओके. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, ओके. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. येस, इट इज़ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. इसका जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है H2O2. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट J.L. थैनर्ड इन 1818. येस, इसको J.L. थैनर्ड ने 1818 में डिस्कवर किया था. एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट केमिकल दैट इज़ यूज्ड इन पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ओके. इसको पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में बेसिकली यूज़ किया जाता है. तो अब देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन, मतलब ये बनता कैसे है, ओके. ये 3 चीज़ों से बनता है. पहले एसिडिफाइंग बैरियम पेरोक्साइड एंड रिमूविंग एक्सेस वाटर बाय इवापोरेशन. जब हम बैरियम पेरोक्साइड को एसिडिफाइंग कर दें, मतलब उसको एसिड में कर दें, और रिमूविंग एक्सेस वाटर बाय इवापोरेशन, इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू जो हमारा एक्सेस वाटर है उसको रिमूव कर दें. और रिमेंबर जो हमारी प्रोसेस होगी फर्स्ट वाली, ये रिड्यूस्ड प्रेशर के अंदर होनी चाहिए, ओके. जब हम बैरियम पेरोक्साइड को लेंगे और उसके मतलब हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे, मतलब एक्सेस वाटर को रिड्यूस करेंगे बाय इवापोरेशन, तो हमारा बैरियम सल्फेट, ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ओके. नेक्स्ट है पेरोक्सो डाइसल्फेट obtained by electrolytic oxidation of acidified sulfate solution at high current densities. हाई करंट डेंसिटी पे जब हम मतलब ये ऑब्टेन होता है हमारा पर ऑक्सो डाइसल्फेट, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन की. मतलब हमें पहले जो सल्फेट है एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन, इसको पहले हमें ऑब्टेन करना है, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक से हाई करंट डेंसिटी के अंदर क्या फॉर्म होगा, पर ऑक्सो डाइसल्फेट, और उसके साथ हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी फॉर्म होगा. देखो पहले हमने क्या लेना है, एसिडिफाइड सल्फेट लिया हमने, एसिडिफाइड सल्फेट. उसके बाद इसकी होगी इलेक्ट्रोलिसिस और फिर ये बनेगा HO3 SOO SO3H. ये क्या है, पर ऑक्सो डाइसल्फेट. फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो इसमें हाई करंट डेंसिटी पे होगी, इसमें तो रिड्यूस प्रेशर में, और इसमें रिमेंबर ऑलवेज इट इज़ इन द हाई करंट डेंसिटी. फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इससे हमारा दोबारा से सल्फेट बन जाएगा ये, और यहाँ पर हमारा दोबारा से हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ओके.
जो लास्ट मेथड है वो है बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्कलाइन एंथ्राकिनोल्स। जब हम 2 अल्कलाइन एंथ्राकिनोल्स की ऑटो ऑक्सीडेशन कर देंगे, मतलब जो अपने आप से अपनी ऑक्सीडेशन करेंगे, जब अपने आप से ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट देंगे। ओके, सो ये मेथड से कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे फॉर्म होता है। सो अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये थिक सिरपी लिक्विड है, गाढ़ा सिरप जैसा लिक्विड है, विथ पेल ब्लू कलर, जिसका हल्का सा ब्लू कलर है। ओके, बिटर टेस्ट, इट इज़ बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में बिल्कुल कड़वा है। इट इज़ मोर डेंस एंड विस्कस देन वाटर, पानी से बहुत ज़्यादा डेंस और विस्कस है। इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो H2 मतलब वाटर से थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा है। ओके, ये थी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्टली डीकम्पोजिशन, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकम्पोजिशन होती है, मतलब जब इसकी हीटिंग होती है तो ये वाटर और ऑक्सीजन में स्प्लिट आउट हो जाता है। एसिडिक नेचर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एसिडिक नेचर है, ये ब्लू लिटमस टर्न हो जाता है, ब्लू लिटमस। ओके, और इसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों करेक्टर है, ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी। ये ब्लीचिंग एक्शन पे भी एक्ट करता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। ओके, जब इसकी डिकम्पोज हो जाता है तो नेसेंट ऑक्सीजन भी बनाता है, जो कि ब्लीचिंग एक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये एडिशन रिएक्शंस भी करता है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो कि इथेलाइन है, जब ये पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इथेलाइन के साथ रिएक्ट करता है तो ये एडिशन में रिएक्शन बनाता है, जो कि बन जाता है हमारा CH2OH विद सिंगल बॉन्ड CH2OH, दैट इज इथेलाइन ग्लाइकोल। ओके, ये थी इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम करेंगे इसके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कुछ यूजेस। वैसे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बहुत सारे यूजेस हैं, बट हम उसमें से कुछ करेंगे जो कि कॉमन है। फर्स्टली, इट इज़ एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। सेकेंड, ये जो हेयर ब्लीच में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। थर्ड, ये हेल्प करता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। फोर्थ है ये इसका फोर्थ यूज़ है ये एपो ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, इनकी प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसके कुछ कॉमन यूजेस थे, वैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ओके, इसके बाद हमारा एक और कॉन्सेप्ट है जो कि है डाईहाइड्रोजन के यूजेस का। ओके, तो वो और करते हैं। सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है डाईहाइड्रोजन। फर्स्ट टॉपिक है डाईहाइड्रोजन एज फ्यूल। डाईहाइड्रोजन को हम फ्यूल के रूप में कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट, इट रिलीजेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट ऑन कंबशन के दौरान ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट को रिलीज़ करती है। सेकेंड, एज कम्पेयर्ड विद LPG, जब हम इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के साथ कंपेयर करते हैं तो उसके कंपैरिजन में भी हाई एनर्जी रिलीज़ करती है। और लास्ट है ये पेट्रोल की कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज़ करती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड सम ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डाईहाइड्रोजन। इट्स एडवांटेजेस आर, इट इज़ अबंडेंटली अवेलेबल, मतलब ये बहुत ईजिली कहीं भी मिल जाता है, पोल्यूशन फ्री है, मोर एफिशिएंट है और ये एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो ये थी इसकी कुछ एडवांटेजेस। ये है इसके डिसएडवांटेजेस, ये इनफ्लामेटरी है, मतलब ये इट ईजिली कैच फायर। सेकेंड, स्कार्सिटी ऑफ प्लेटिनम, इसमें प्लेटिनम की बहुत ज़्यादा कमी है जिसको हम कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं। लास्ट है इसको लिक्विड स्टेट में इजीली कन्वर्ट किया जाता है बाय कूलिंग टू 20 केल्विन। 20 केल्विन पे जब हम इसको कूल कर देते हैं लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्सपेंसिव इंसुलेटेड टैंक्स जिसके लिए रिक्वायर होते हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक डाईहाइड्रोजन, और अब हमारा चैप्टर हो गया है फुल कंप्लीट। ओके, नाउ हाइड्रोजन चैप्टर गुड फुली कंप्लीट। मैंने अपनी पूरी बेस्ट ट्राई की है कि आपको इस भी चैप्टर में कोई भी डाउट ना रहे। ओके, I hope so that all you understand all concepts clearly. Okay, so if you like the video then please like, share and subscribe my channel. Okay, thank you, bye bye.